हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। प्राइमरीली आज हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ मैकेनिज्म एंड अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टर। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर एक इकोनॉमी में थ्रू आउट द वर्ल्ड दो तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे कंजम्पशन के लिए और कुछ पार्ट सेव करेंगे, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते होंगे, या जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। सो टू कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑलवेज you can see in each economy. One where the people are with the surplus fund, and on the another side people are with the deficit fund. So financial institution provide a link between the savers and investors. It provide a link between those who have surplus money या surplus funds, and on the another hand people with the deficit fund. So it provide a mechanism for that. So देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन: बैंकिंग एंड non-banking. Banking institutions accept deposit and they lend money, but non-banking institution, they do not accept money but they are the lenders. Banking institution further categorized into commercial bank and cooperative bank. Commercial banks, these can be classified as public sector bank, private sector bank, RRB or regional rural banks, and foreign bank. Non-banking institutions are categorized in 2 parts: organized sector and unorganized sector. If we see broadly, financial institutions are always classified in 2 categories: organized sector and unorganized sector. The sector which is governed by rules and regulations, that is called organized sector. Like Indian banking system is governed by RBI, Reserve Bank of India. So banks, those who are governed by RBI comes under the organized sector. But you will see there are unorganized sector also. जैसे हम देखते हैं कि साहूकार हैं या कुछ आड़ती हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, वो unorganized financial institutions का पार्ट है. Similarly, financial market is classified into 2 parts: money market and capital market. The market which provides funds or float funds for the short time less than 1 year, that comes under the money market, and the market where funds are floated for more than 1 year comes under the capital market. Capital market is further classified primary market, secondary market and derivative market. Primary market where fresh shares or debentures or bonds are floated for the first time. Like कोई कंपनी अगर अपना IPO निकाल रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल रही है या FPO निकाल रही है, सो वो प्राइमरी मार्केट में जाएगी. Once the shares are raised in primary market, they are further traded in the secondary market or stock market. Primary market is also called new issue market, and secondary market is also called stock market या stock exchanges. Financial instruments, these instruments are traded in the financial markets. These can be shares, debentures, deep discount bond, fixed deposit. There are so many financial instruments which are traded in the Indian financial system. Beside this, it also has financial services. Like financial services, merchant banking, क्रेडिट रेटिंग, लीज, फैक्टरिंग, हायर परचेज, ये हम सब 1 by 1 डिस्कस करेंगे.
आज के लेक्चर में विल डिस्कस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड दे प्रोवाइड क्रेडिट्स या दे आर द लेंडर्स. जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड वो पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड करते हैं लाइक हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन. सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर द क्रिएटर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ क्रेडिट. But non-banking institution, they do not accept money, they do not accept deposit, but they are the providers of credit. Like NABARD, there are various institutions which are not engaged in the banking. So आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि how banking institution are creator of credit. See, इस एग्जाम्पल को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशो क्या होती है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है. कोई भी कमर्शियल बैंक है, हर एक बैंक के लिए मैंडेटरी है कुछ पार्ट अपने डिपॉजिट का कैश में रिजर्व रखना विद द RBI. जैसे अगर हम बात करें कि कैश रिजर्व रेशो 10% है, इट मीन्स आउट ऑफ 1000 100 rupees would be kept with the RBI in the form of cash. यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो में जो हाईलाइटेड पॉइंट है दैट इज RBI, मीन्स जो कैश रखा जाएगा वो RBI के पास रखा जाएगा. और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या है, दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरी कमर्शियल बैंक टू रिटेन अ पोर्शन ऑफ लिक्विड असेट टू मीट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज. अब देखिए ये टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी क्या है. अगर सपोज आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया फॉर एग्जांपल 5 years के लिए, तो आफ्टर 5 years बैंक विल हैव टाइम लाइबिलिटी एंड डिमांड लाइबिलिटी इज द डिमांड डिपॉजिट. जैसे अगर हमने अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डाला और हम उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज डिमांड लाइबिलिटी. जब भी किसी भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, बैंक को वो आपका मनी वापस करना होता है. मगर जब कोई भी बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है वो बैंक की असेट हो जाती है क्योंकि वो बैंक को वापस मिल जाएगा. सो जो हमारे डिपॉजिट्स हैं बैंक के साथ, दीज आर लायबिलिटीज फॉर द बैंक. अगर इकोनॉमी में क्रेडिट जनरेट करना है तो RBI क्या करता है, कैश रिजर्व रेशो को कम कर देता है. जैसे हमने बोला कि 1000 रुपीज़ में से अगर 10% हम लोग कैश रिजर्व रेशो रखते हैं, इट मीन्स 1000 में से 100 जो है CRR है और 900 बैंक्स के पास होती है लोन देने के लिए या लैंडिंग पर्पस के लिए. अगर इकोनॉमी में क्रेडिट इंजेक्ट करना है तो RBI अपनी कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज कर देता है. जैसे 1000 पे अगर मैं 5% बोलूँ कि कैश रिजर्व रेशो है, इट मीन्स out of 1000 only 50 rupees would be kept as cash reserve ratio and 950 would be available for the credit. अब देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं. मिस्टर ए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए की इनकम 2000 थी, उसमें से उन्होंने 1000 कंज्यूम कर लिया, खर्च लिया और 1000 अपना सेव कर लिया. अब मिस्टर ए सेविंग के लिए कहाँ जाएंगे, अपने 1000 रुपीज़ को लेके बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देंगे. और जो ये डिपॉजिट करवाया जाएगा वो क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा देंगे. इसी तरह से सोसाइटी के बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे. और बैंक एक अजम्पशन पे काम करता है कि सब के सब एकदम से डिमांड डिपॉजिट नहीं करेंगे. तो बैंक क्या करता है, इस 1000 में से 100 इट मीन्स 10%, 1000 का 10% SLR रख लेता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रख लेता है. तो 1000 में से 100 इज SLR और जो 900 है दिस इज अवेलेबल फॉर क्रेडिट पर्पज. तो बैंक क्या करेगा, 1000 में से 100 SLR रख के 900 का मिस्टर बी को लोन दे देगा.
अब मिस्टर बी क्या करेगा, या तो इसको इन्वेस्ट करेगा या कंज्यूम करेगा। से मिस्टर बी ने क्या किया, गुड्स परचेज करी मिस्टर सी से 900 की और पेमेंट कर दी 900 की। देखिए 1000 में से 100 SLR, 900 जो लोन था वो कंजम्पशन पर्पज़ या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा मिस्टर बी। मिस्टर बी ने गुड्स परचेज करी मिस्टर सी से और 900 रुपीज़ की पेमेंट करी। अब मिस्टर सी ने क्या किया, ये 900 फिर से बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिए। तो अब देखिए ऑलरेडी 1000 मिस्टर ए ने डिपॉजिट करवाए थे और 900 मिस्टर सी ने भी डिपॉजिट करवा दिए। तो बैंक के पास देखिए 1000 स्टार्टिंग में थे, 100 SLR और 900 मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया बैंक ने मिस्टर बी को। फिर सी ने 900 बैंक को फिर से दिया और बैंक के पास अब कितने अमाउंट हो गया, 1000 प्लस 900 1900। इस 900 में से फिर से 10% SLR रख लेगा बैंक और रिमेनिंग 810 लोन दे देगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से देखिए कि 900 पहले बी को दिए थे लोन के रूप में, अब 810 फिर से दे दिए। अब मिस्टर बी ने क्या किया, 900 प्लस 810 810 1710 रुपीज़ की स्पेंडिंग कर सकेगा मिस्टर बी। मिस्टर बी फिर से क्या करेगा, सी से गुड्स परचेज करेगा, सी क्या करेगा, बैंक में डालेगा और बैंक फिर से क्या करेगा, 10% SLR रख के रिमेनिंग क्रेडिट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। एक बार मार्केट में अगर क्रेडिट इंजेक्ट कर दिया जाए या मनी इंजेक्ट कर दी जाए, इस तरह से ये क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। देखिए ये बैंक की बैलेंस शीट है, क्योंकि डिपॉजिट्स हमारे लायबिलिटीज़ होती हैं और हमारा जो लोन है वो असेट होती है। तो मिस्टर ए ने डिपॉजिट करवाए 1000, डिपॉजिट सी ने करवाए 900 और डी ने करवाए 800। इसका 10% SLR रख के रिमेनिंग क्या करेंगे, वो लोन प्रोवाइड कर देंगे। और जो ये 190 और 81 रुपीज़ है, देखिए 100 प्लस 90 प्लस 81, ये हमारी क्या है, SLR है। थैंक यू।